Hello aspirants, welcome to Shirama's YT channel for today's 1 PYQ day series. Today is the day of Indian society and that is why I'm here to talk about one previous year question which has appeared in mains 2023 GS paper 1. Let's look into the question first. The question that was asked was this, the last question of the paper. Discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism. Again, discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism. Rarely this happens when every single word of the question carries deep meanings, deep weightage. So first of all, we have to devote some time into thinking how to approach this question. Because if your approach is wrong, you will not get the desired marks even though your content will be maybe very good. तो यहाँ जो ऑपरेटिव वर्ड है वो है डिस्कस करना है हमें. वी हैव टू सी व्हाट changes, be it positive or negative, which has been brought by post-liberal economy. Post-liberal economy means post 1991 Indian economy, जब liberalization, privatization, globalization reforms हुए. Impact they are asking on ethnic identity and communalism. So if you see this question carefully, you can understand कि जो फोकस है एग्जामिनर का, जो चीफ वेरिएबल है इस पूरे क्वेश्चन में, वो है पोस्ट लिबरल इकोनॉमी. तो पोस्ट 1991 1991 से लेके अब तक का जो भारत है उसमें इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है उसको आपको डिस्कस करना है. यू कैन टेक both these variables, ethnic identity and communalism, separately. हम इस तरह से इसको फ्रेम कर सकते हैं कि इथनिक आइडेंटिटी के बारे में हम पॉजिटिव लिखें और नेगेटिव जो चेंजेस आए हैं उसको लिखें. कम्युनलिज्म को पॉजिटिव चेंजेस देखें उसमें और नेगेटिव चेंजेस देखें. दिस इज अ पॉसिबिलिटी. हाउएवर, आई विल ऑफर यू ए डिफरेंट अप्रोच हियर. आई विल से कंबाइन दीज वेरिएबल्स टुगेदर बिकॉज जो फोकस है एग्जामिनर का वो यहां पे है. एंड इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म में ओवरलैप जो रियल वर्ल्ड है उसमें होता है. तो देर इज नो नीड टू एड्रेस देम सेपरेटली. यू कैन कंबाइन देम एंड टॉक अबाउट देम. तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे अपने आंसर की. दिस इज द फॉर्मेट विच आई एम गोइंग टू टेक. द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन is very important. As I say, introduction is the face of your answer. So you will start about talking the impact. क्या impact हुआ? Here you have to offer your opinion. The impact is paradoxical. Impact is contradictory. So liberalization, privatization, globalization or post-liberal economy in India has paradoxical impact on Indian societal scene when it comes to ethnic identity and communalism. It has made them stronger. It has weakened them on some parts. तो जो स्ट्रक्चर है इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म का उसको कुछ एस्पेक्ट्स में पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ने मजबूत बनाया है, कुछ एस्पेक्ट्स में पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ने वीक बनाया है. तो पहले हम बात करते हैं कहां पे वीक बनाया है. हेयर द मेन बॉडी ऑफ योर आंसर विल स्टार्ट. तो पहले हम बात करेंगे विदाउट सब टाइटलिंग एज वीक. वी विल सिंपली स्टार्ट राइटिंग हाउ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द इंडियन सोसाइटल लैंडस्केप. अल्टीमेटली ये क्या थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए जब लिबरलाइजेशन हुआ? इट मींस व्हाट? मोर इकोनॉमिक फ्रीडम पीपल गॉट. more economic freedom people got because of these reforms. More global integration people got because of these reforms. It has become easier after 1991 reforms to shift labor, to shift capital, to shift technology from India to other countries and from other countries into India. So within India also more economic freedom has been granted to our people. So more and more new enterprises are being created, more startups, more entrepreneurship,
मोर माइग्रेशन, ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी देखो माइग्रेशन कितना बढ़ा है 1991 के बाद। मोर एंड मोर माइग्रेशन, मोर एंड मोर माइग्रेशन बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ मैरिजेस, ये हो रहा है इंडिया के अंदर, हमें दिखाई दे रहा है। मोर एंड मोर अर्बन जॉब्स गॉट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ these liberalization reforms in 1991. More servicification of the economy took place, more corporatization of the economy took place, more financialization of the economy took place. इन सब के कारण क्या हो रहा है, ज्यादा माइग्रेशन लोगों का हो रहा है, ज्यादा लोग अर्बन जॉब्स में जा रहे हैं, ज्यादा अर्बनाइजेशन इंडिया में हुआ, तो अर्बन जो लैंडस्केप है वो बड़ा होता जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, इनके एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अब शहरों में रहना चाहते हैं। जो एस्पिरेशंस हैं वो ये है कि हम बड़े शहरों में, मेगापोलिस में, मेट्रोपोलिस में रहें। दिस इज एन आइडिया विच इज वेरी वेरी रेलेवेंट हियर, बिकॉज दैट हैज वीकेंड ethnic identity and communalism. When you are living in a metro spaces, metro cities, you are working in a corporate house, वहां डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट जो कास्ट बैकग्राउंड है, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, जो इथनिक आइडेंटिटीज हैं, वो हमें वहां दिखाई देती हैं। डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स के लोग वहां पे काम करते हुए दिखाई देते हैं। यू हैव टू शेयर योर ऑफिस स्पेस विद देम, you have to share your housing society space with them, you have to share your schools जो स्पेस है उनके साथ, हॉस्पिटल्स के जो स्पेसेस हैं, जो एंटरटेनमेंट के स्पेसेस हैं। तो मोर एंड मोर इट सेलिब्रेट्स इन ए वे डाइवर्सिटी इन द कंट्री। मोर डाइवर्स पीपल आर लिविंग टुगेदर इन अर्बन लैंडस्केप्स, दे आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट हाउसेस। दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर अस। मोर कॉस्मोपोलिटिज्म जिसे हम कहते हैं, कॉस्मोपोलिटन जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट हुई है, कॉस्मोपोलिटन आइडेंटिटी क्रिएट हुई है। तो ये जो आइडिया है ये हमें दिमाग में रखना है। दैट हैज वीकेंड द इथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। मोर एंड मोर पीपल आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टुगेदर। तो न्यू ईयर हैज बिकम ए फेस्टिवल इटसेल्फ व्हिच इज शेयर्ड अक्रॉस बाय डिफरेंट इथनिक आइडेंटिटीज एंड कम्युनल ग्रुप्स। तो ये जो आइडियाज ये क्या है, अर्बन लैंडस्केप्स के आइडियाज हैं। ये आइडियाज मोर एंड मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कारण हो रहा है। ज्यादा इकोनॉमी इंडिया की इंटीग्रेट हुई है, ज्यादा इंटरडिपेंडेंस हमारी एक दूसरे के ऊपर बढ़ी है। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन इकोनॉमी का हुआ है पोस्ट लिबरल वर्ल्ड में। दैट हैज चेंज्ड द इंडियन लैंडस्केप। पीपल आर शेयरिंग देयर आइडेंटिटीज। अभी कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ अहमदाबाद में कुछ महीनों पहले, कितना मैसिव वहां पे क्राउड था। तो पीपल आर शेयरिंग देयर आइडेंटिटी नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, देयर रिलीजन, देयर ट्राइबल status, but they're also sharing identities on the basis of music. What kind of music you like? Political ideologies have become the centerpiece of framing friendships and engaging in romantic associations these days. ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि लिबरलाइजेशन हुआ है इकोनॉमी का। गेमिंग जॉनरे क्रिएट हुआ है अपने आप में। गेम्स हैव बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। पीपल आर शेयरिंग देयर फीलिंग्स, देयर आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गेम्स यू प्ले। तो ये सारी चीजें आई हैं क्यों? क्योंकि इकोनॉमी लिबरलाइज हुई है, जिसके कारण इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म जो है वो वीक हुआ है। हिंदूज आर मूविंग टू गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम्स आर मूविंग टू, फॉर एग्जांपल, इन वेस्टर्न कंट्रीज, इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन हिंदूज, इंडियन डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड कम्युनिटीज। तो ये सब कुछ चेंजेस हुए हैं क्योंकि इकोनॉमी लिबरलाइज हुई। तो वीक हुआ है दोनों वेरिएबल, इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म। अब हम आर्ग्यू करेंगे दिस इज नॉट द केस, because they are asking us to discuss, that is it has become stronger। तो जो हमारा दूसरा पार्ट होगा आंसर का, डिस्कशन करने के लिए कहा जा रहा है हमसे, we will now discuss कि how it has become stronger in many other ways। ethnic identity has become stronger in many other ways। You see, don't have to write definitions for ethnic identity क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स आर गिवन ओनली 250। यू हैव टू सबमिट योर आंसर इन 250 वर्ड्स। इफ यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, एक्सेसिवली डिस्क्राइब करने की तरफ जाओगे कम्युनलिज्म, इथनिक आइडेंटिटी, इट विल क्रिएट इश्यूज फॉर यू। बट इफ यू आर वेरी कंसाइज इन आंसर राइटिंग, यू कैन थिंक कि भाई इवन आफ्टर गिविंग डेफिनेशंस आई कैन राइट परफेक्टली, देन गो अहेड विद दिस, बट डोंट सब्सटेंटिएट टू मच देयर। तो क्या स्ट्रांग हुआ है? इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म मजबूत भी हुए हैं पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में। क्यों? बिकॉज ऑफ जो रेस्टलेसनेस है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और सारी जो अर्बन
इकोनॉमीज होती हैं, जो कॉरपोरेट सर्विसिफिकेशन जहां होता है, वहां एक रेस्टलेसनेस हमेशा होती है, कहीं पे भी हो। People are dealing from their work. They go to offices from 9 to 5 only to earn some money. They do not enjoy their work. There are so much of pressure, pollution हो रहा है हर जगह, पॉलिटिकल वायलेंस की सिचुएशन है, टेररिज्म है, जॉब लॉसेस का खतरा है, जॉब इनसिक्योरिटी है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। इन सब कारणों से क्या हो रहा है? रेस्टलेसनेस है इंडिविजुअल के अंदर। सो दे सीक सम कंफर्ट, दे सीक सम स्टेबिलिटी इन देयर आइडेंटिटीज, इन देयर कम्युनिटी। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली जो माइग्रेशन होके लोग गए हैं भारत से बाहर, उनके अंदर विद इन इंडिया जो इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है, यहां भी ये बात हमें देखने को मिलती है। सो ऑल बिहारी माइग्रेंट्स, they will combine together, they will have a sense of feeling where brotherhood when they are living in Maharashtra, they are living in Tamil Nadu, etc. So this is something which you have to keep in mind in post liberal economy order के अंदर। ये सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट इकोनॉमी का कैसे पड़ता है, इसके ऊपर ये सवाल है। तो हमें इस तरीके से लिखना है। रेस्टलेसनेस डेफिनेटली है, जॉब इनसिक्योरिटी डेफिनेटली है। क्या इनइक्वालिटी बढ़ी है इकोनॉमी के अंदर? डेफिनेटली बढ़ी है, इनइक्वालिटी भी बढ़ी है, जॉब इनसिक्योरिटी भी बढ़ी है। दैट इज देयर। टेक्नोलॉजिकल ऑनस्लॉट है पूरी इकोनॉमी के अंदर, अभी एआई काफी ज्यादा चर्चा में है, उसके पहले भी टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट काफी ज्यादा अनइक्वल रहा इकोनॉमी के अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइंड इकोनॉमी के अंदर, जो लोग एजुकेटेड हैं, टेक्नोलॉजिकली सेवी हैं, वेल कनेक्टेड हैं, उनके पास जॉब्स हैं। जो लोग रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं हैं, कल्चरल कैपिटल नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है। तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। तो IITs, IIMs, post liberal economy has glorified them, but the access to them is still very limited. ये चीज दिमाग में रखनी। तो इनइक्वालिटी हमारी बढ़ी है। इनइक्वालिटी कारण क्या हुआ है? रेस्टलेसनेस और बढ़ी है। और इनइक्वालिटी जो है वो सोशल वेरिएबल्स के आधार पे हमें दिखाई देती है, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। तो इससे कॉन्शियसली पीपल बिलीव कि बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी दे आर बीइंग डिनाइड जॉब्स। हो सकता है किसी हाउस ओनर ने अपना रूम, अपना फ्लैट, अपना घर किसी मीट ईटर को रेंट पे ना दिया हो, बट इमीडिएटली इट विल बी लिंक्ड टू सम कास्ट आइडेंटिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी। जस्ट वन एग्जांपल। तो कॉन्शियसनेस ये डेवलप हुई है कि बिकॉज ऑफ आवर आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ आवर द वे वी आर, हु वी आर, हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो दैट हैज इंटेंसिफाइड ethnic identity and communalism, or on the basis of these two, people are going for asking for justice. तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ी है, इथनिक आइडेंटिटी एक तरीके से और मजबूत हुई है, और जो कास्ट बेस्ड कम्युनलिज्म है वो भी मजबूत हुआ। हालांकि इंडिया में कम्युनलिज्म का सीधा सा जो कोनोटेशन होता है रिलीजियस कम्युनलिज्म। तो नंबर ऑफ राइट्स अगर हम देखें पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में, वो भी बढ़े हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स भी बढ़े हैं। मिडिल क्लास एक मैसिवली इंपॉर्टेंट सेक्शन उभर के आया है, जो कि काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है, काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है। और जो राइट विंग नेशनलिज्म इंडिया के अंदर है, उसको काफी बड़ा सपोर्ट मिडिल क्लास का मिला हुआ है। अब इसमें हम इन्फ्यूज कर दें अगर सोशल मीडिया को, तो सोशल मीडिया के कारण ये जो हेट कैंपेन्स हैं, जो फेक न्यूज हैं, जो मोरल पैनिक क्रिएट किया जाता है, ये सब कुछ इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने वाली बात है। तो मोर एंड मोर वी आर बिकमिंग डिजिटल एंड मोर वी आर बीइंग आइसोलेटेड। दिस इज द पॉइंट। तो ये जो आइसोलेशन है, ये रिफ्लेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म के ऊपर। जो ये जो गैप क्रिएट किया है स्टेट की लिमिटेड कैपेसिटी में, स्टेट की कैपेसिटी काफी लिमिटेड है टू एड्रेस पीपल्स न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशनल नीड्स। तो इसको फिल कौन कर रहा है? रिलीजियस ग्रुप्स कर रहे हैं, कास्ट बेस्ड ग्रुप्स कर रहे हैं, इथनिक ग्रुप्स कर रहे हैं। इससे इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म मजबूत हुआ है, विच इज रिफ्लेक्टेड इनटू ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ मेनी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज। नाम मत लिखना, मेनी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। सिंपली यू विल राइट दिस डाउन। तो अब हमने आर्ग्यू कर लिया कि भाई इसने वीक भी किया है, स्ट्रॉन्ग भी किया है पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ने इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म को। बाय द टाइम यू आर डन विद द एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें साइट किए जा सकते हैं, which you will cite, but in an objective and fair manner. Do not write any offensive word, any political party's name, not at all. One has to write objectively, one has to write reasonably. और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे। ये जो पैराडॉक्स है, it is being
being mediated through technology, through state capacity, through global institutions, through India's own conservative outlook. तो इंडिया इज स्टिल कंजर्वेटिव, हमारा सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं वो आज भी कंजर्वेटिव हैं, उसमें टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कल्चरल ट्रेंड्स, स्टेट की कैपेसिटी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कुछ एरियाज में आइडेंटिटी को मजबूत कर रहे हैं, कुछ एरियाज में आइडेंटिटी को कमजोर कर रहे हैं। तो कंक्लूजन हमेशा शॉर्ट क्रिप्स होना चाहिए, विच विल इन ए वे गिवन एन इंप्रेशन ऑफ क्लोजनेस ऑफ द आंसर, कि आंसर यहाँ पे क्लोज हो गया। दैट्स हाउ यू राइट मेंस आंसर्स। दैट्स ऑल इन दिस particular question, and I hope you got all of the gist of it. You can join me on my Telegram channel as well to stay in connect. Thank you for giving me your time.